There are several reasons we want to go with the class. First reason, I can have a collective informations. I can have a collective informations in single unit is called class. Class customer. You can have a collective informations or you can have a selective informations. बेटे सो जाना अभी 2 घंटा ठीक से तो बैठो थोड़ा इंट्रो लो अपने एनर्जी लो. I have a selective informations or collective informations in a single unit. Like as a assembly is a single unit. मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ तेरे को आज. मेरा तो चेहरा देख पर्सनालिटी देख मेरी. What is class? So there is a thought. There is a thought. To combine all the thoughts and selected thoughts which can be put into a single unit called class customer. Now I can think only about customer. So my whole concentration goes on the concentration as a yoga. So class is primarily made for collect the informations of selective one wrap in a class, so that if I create an object of that class which is a collection of selective informations or collective informations is called object. But sir, by that object we cannot expose any informations because all the informations are collected in a private scope. Is called data. We cannot operate anything directly on the object. We cannot access any information directly via the object. This is called data. Due to my collectives are selected or private. To achieve the data hiding, private is needed. Otherwise, anybody can directly access the information by that object. मेरी आवाज का सेंस देखो और कहाँ से बोल रहे ये भी देखो. So I have decided, sir, if I will have a class for carrying the information of selected one, it must be private. There is a journey and there is a bag. Every information in that bag is private. Only by the lock system I can operate the bag. So we have to have a mechanism to operate the bag. Hello? अब मुझे नहीं बोलो. अभी मेरे को बात नहीं कर बोलो. अरे 1 मिनट के बाद कॉल करो. So if I have a collected informations, it must be private. Otherwise, I am losing a privacy. Once the things are collected in single container, is called an object which represent to class, which represent to really class. We have to have a mechanism to operate on that object to access the collective informations. So you take my key of the car, then you can get the diary or the pen kept in my dashboard. But you cannot operate the car without having the lock system. So if a car is having a lock system, it is called private. And key of the car is called what? Mechanism to operate on the private variable. So the key is called public. The key is called public. The item called diary in the car is called private.
If item is public, why do we require key then? So encapsulation is a mechanism to achieve when any information is private, how I can access by the object. It teaches me the mechanism to operate on the object. It teaches me, it guides me, it provides a mechanism to operate on the object to access the collective information. So there are multiple ways I can make a mechanism, or called operation, called procedure. It's called way of accessing the information, called methodology, it's called VD. It's called प्रयोग करने की विधि. Encapsulation means प्रयोग करने की विधि, but not directly accessible. Please keep in mind, baby. If any information can be directly accessible, why do we make a dabba called object tab? If there is a briefcase or suitcase without lock system, why do we go for briefcase tab? It's better you keep all items without briefcase as randomly like this. At this point, you cannot achieve data hiding because all are public by default. To achieve a data hiding, you have to have a variable called private. Then you apply the encapsulation. Look at the mathematics. If the variable is public, we don't need mechanism to access. It is publicly for everyone. As you can say Dhamshala. As you can say Delhi guys. As you can say, in Delhi, if you go Delhi, every area has park. Every area has park. And anybody, after having a dinner or lunch or breakfast or morning yoga, they can use that place. Nobody stops you to go there. You go any section of Delhi, not Noida, Delhi, you can have a find their park. You can sit, you can walk, you can laugh. Nobody stops you because no data hiding is there, no mechanism is there. So if data, there is a condition. If variables are private, then we can think the mechanism to operate on those variables. One item is kept in the kitchen, in any room, and I'm just watching and applying the logic how I can access the information. I have got one battery operated car. I am trying for last 5 minutes how to insert a new battery because things are compact. I am searching a ways. It's not publicly opened. It is privately closed. What? If it is publicly opened, why do we go for mechanism? Once it is privately closed. So once you buy the key operated car, battery operated car, they have some screwdriver. If you have a screwdriver, you can remove the screw, there from there, or you can insert the battery. Then you can close that door. So there is a mechanism to operate the information. It's called via functions or via properties. So that to maintain the data hiding. So morning. Whenever I talk about the data hiding, means things are compact as a privately. And once I talk about encapsulation, means there is simple task, simple mechanism how to operate on the private informations, but I cannot directly operate on the private informations. So I have to have there is a dicky example. There is a dicky, but I cannot operate a dicky directly because if you don't open the doors from somewhere, so otherwise it is a publicly anybody can go for. So if there is a mechanism to access the informations, and the best example maybe, the best example in our life,
वो खुद बोलेगा समझ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चुप नहीं हूं. बेस्ट एग्जाम्पल सर. बट आई सेड अगेन, it is a mechanism to operate on the private data. How I operate, don't ask. Are you getting or not? That's the most important. It's called hiding of implementation. You say 4, 5, I can give you 120 as a factorial. I can show the function, name is this, but I will not show what code is written within the function. The best ever example, you always go for like this. Every man in the bank is account holder or called account owner. But same bank, same customer, I am account owner, not a bank owner. I am account holder or account owner of that bank. I know myself better. But sir, even though to access the information or deposit the information or to get the information or transfer the information, what is information called? Data. IT, information technologies, data. The information is called collection of data. IT industries, any company maintain the data by software. Information and technologies. Information means data management. Technologies means the various stages or various ways you can go for maintaining your data management. By Java technologies, by .NET technologies. These are two smart technologies to maintain the information, not to leak the information, not to disclose the information. So I am account holder. I want to transfer the information, deposit the information, or to access the information. But a bank owner says, or employees of the bank says, if you want to perform any operation, please follow my instructions. I will not allow you to come inside my process and to get the money directly. I know you are account holder. Doesn't mean maybe you are a bank owner. You have to go by a certain channel. Oh my God, the best word of explaining encapsulation is channel or standardization, called methodologies. So hiding of implementation can be achieved by multiple ways, multiple methodologies. Standardization like channels, by different ways I can maintain my data should be safe. It should be safe from accidental alterations. Nobody can access my data without prior notifications. So I have multiple security system. I have multiple security system. I can maintain my data. It's called information and technologies, IT industries. I have multiple ways to secure my data. Doesn't mean multiple ways are maintained, multiple ways are given to protect the data. No. आप आ गए, हम डांटना छोड़ दिए, और जब से डांटना छोड़े हैं मैं काफी कूल हो गया। और आप नहीं होते ना अंकल 3-4 महीना पहले, उसकी मैं क्या हालत करता आप यकीन नहीं कर सकते। और ये हमने सीखा है एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से। मैं सिम्बोसिस में एक दिन लेट क्या हुआ था, आप तो डस्टर की दाग मेरी यहाँ पड़ी हुई, ये दाग यहाँ, ये डस्टर का फेंका हुआ दाग है बेटे, ये यहाँ कटा हुआ है भीतर से। हम वहां से पढ़ कर आए। हम गुस्से में नहीं रहते हैं, हम गंदे फेस में नहीं रहते हैं, हम डिसिप्लिन में। इसके आने से फ्लो तो उठ गया, ये प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए हम अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाते और कोई रीजन नहीं। फ्लो चल रहा होता है ना, वो लिंक टूट जाता है।
इनके लिए पढ़ाई साला मजाक के चक्कर ही है, ये मेरे साधना है। एक साधना करते हैं सुबह, सबकी जॉब लग गई, उस बैच में कहाँ कोई है? कोई नहीं है, सब चले गए। अब फिर सेकंड साधना स्टार्ट किया है 8 से 9। लक्की हो बेटे, अब छोड़ दिया मारना। मैंने कसम खाया, अंकल ने कसम दी थी, नहीं मारना, छोड़ दीजिए इनको। मैं टच भी नहीं करता किसी बच्चे को, छोड़ दिया सब कुछ। मैंने अपनी जमीन बेच दिया। So finally, the account owner and the bank owner. If account owner communicate to bank owner, in between, you have to have a standardization, way of methodologies to access the information. It's called information and technologies. They provide for everyone the withdrawal form, the deposit form, the transfer form, the fixed deposit form. By this you can communicate to. So encapsulation can be achieved when the information is privately closed. Doesn't mean you won't access the information. You can preserve the informations, you can have the information collective ways, but you wanna get via channels. Bank never says you only can deposit the amount. Once it is needed from your side for the marriage plan, for education loan, or something for your family running and all there, you really come to my bank and will fill up the form, get a token and get the money and go back to your place. So they provide certain channel. Via this we can go for accessing the work information. It's called methodology, is called encapsulation. But this can be valid when the information is privately wrapped. But when I am in a home, my jeans, my t-shirt, my wallet is publicly opened. I don't want to apply data hiding or way of channels when there is a single class. But if my class wanna communicate to a number of classes, then we have to have your standardization or ways or methodologies. But for myself, I don't want to go for data hiding or encapsulation. But it is publicly what? Opened. I can keep the bloody key of the car on any area of my home, but I feel uncomfortable to keep the key of the car in other places. So data hiding means, for myself, I don't want to make a data hiding. Other person or other classes who is willing to access my informations, I have to maintain the what? I talk with myself publicly. Who I am, what I have done, what I am doing nowadays, what I am learning, what is my agenda today in the night. But every day Sandeep Karan has to go for studying in the night. He's going to be watching on Facebook. Maximum 1 to 2 o'clock. 1 to 2 in between. So I start logging at 10 o'clock, go till 1:30 or 2 o'clock. There was activities. If I don't go for that studies, I will really lose my name and fame in IT industries. To teach you, not to teach you, to teach developers of mine is, I have to go for studies. Because they can throw me within a second. They are coming from far places. Now next Sunday,
guys are coming from Jaipur only to attend my class of WCR. And they still in a hotel in the night of Saturday. No any family member is there in that Delhi, they can have a night. So they will stay in a hotel and they will come back to next Sunday, next morning, attend my class, they will go back to Jaipur. And I asked, he's having a 17 experience, 17 years experience in IT industries. So now I have to more read. अब मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. अब मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. But किसके लिए? पब्लिकली नहीं, बोलो कौन? अपने लिए सर. अपने लिए सर. कि बेटे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हम पढ़ाते हैं और रात अपनी हम नहीं पढ़ाई करेंगे तो मेरे रहने का पर्पस इस वर्ल्ड में नहीं. मेरी हर रात पर्पस में होनी चाहिए. अब मैं यही प्लान कर रहा हूँ, मेरी कल की रात, परसों की रात, तरसों की रात, चौथी रात, पांचवी रात, हर रात खराब जाएगी. मैं उसको मेकअप कर लूँगा. वो कैसे करूँगा मेरा काम? चाहे मेरे चेहरे खराब हो जाएं और दाग पड़ जाएं और मेरी हेल्थ खराब हो, मैं उसको मेकअप करूँ. वो कैसे करूँगा मेरे पे? तो डेटा हाइडिंग मीन्स फॉर माई सेल्फ नो डेटा हाइडिंग इज देयर. क्यों? मैं अपने आप से कुछ छिपा नहीं सकता, मैं किसी और से छिपा सकता. तो डेटा हाइडिंग बना है किसी और से छिपाने के लिए. अगर मैं 4 रात नहीं पढ़ूं उस टॉपिक को भूल जाऊं. और डेवलपर्स जब मुझसे क्वेश्चन करता है तो मेरी आवाज में आ ना होना चाहिए, बिल्कुल आवाज में बुलंदी होनी चाहिए. जितना कॉन्फिडेंट हो गले खड़े हो जाओ. इतने कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि मैं उस टॉपिक के ऊपर ज्यादा जानता हूं. इधर आओ. इस तरीके से आवाज वो दे सकता है जिसने चीजों के ऊपर परिश्रम करा है. अदरवाइज मैं आपकी बटरिंग करता था लेते, मैं आपसे बटरिंग नहीं कर सकता. am I right? मैं कॉन्फिडेंटली तुमसे बात करता हूं. तो डेटा हाइडिंग का मतलब ये होता मैं अपने आप से कुछ नहीं छिपाता. डेलीगेट, एक्सेप्शंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, मैं अपने आप से कुछ नहीं छिपाता हूं. पर बेटे जब मैं रास्ते पे चलता हूं तो मैं ये क्यों किसी को बोलूं मुझे डेटा हाइडिंग आती है या पॉलीमॉर्फिज्म आती है? जो मुझसे बात करता है तब पता चलता है कि मैं आईटी इंडस्ट्रीज का बंदा. इफ वन क्लास इज कम्युनिकेटिंग टू अदर क्लास फॉर मैसेजिंग, ओ बेबी, इट्स ए ग्रेट कॉल इनकैप्सुलेशन. अब डेटा हाइडिंग नहीं होना चाहिए. मुझसे बोलते हैं हिचक और हेजिटेशन. तो आप हेजिटेशन करते हो मेरे से, और आप मुझसे हेजिटेशन करोगे तो आप मुझसे सीखोगे कैसे? राइट? आप मुझे सीख नहीं पाओगे. आप सीख नहीं पाओगे. मैं अपनी ज्ञान अंकल एक बंदे को थोड़ा दे दिया, वो मेरा अभिनव सक्सेना है, वो जानता है ठीक से. सक्सेना मेरे रूम में नीचे बैठता था, याद है आपको राम? उसकी हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने टेबल पे बैठे, वो नीचे बैठ जाता था. कसम मैं आपके सामने नहीं बैठ सकता. आज बच्चे को हमने थोड़ी जिंदगी दे दी और इस बात की खुशी है बच्चा इतना बड़ा हो गया, अपने बेस को नहीं भूला. हम उसी को काउंट करते हैं तुम कितने बेस पे हो. जो आदमी बेस को पकड़ कर है वह आदमी राइज करता है. उसको हमने 0 से 10 होते हुए देखा है और हम यकीन करते हैं लाइफ में जितना पाएगा उतना कोई नहीं पा सकता. क्यों? वो डाउन टू अर्थ. तो आज भी उस तरीके से ट्रीट करता है जो बिना जॉब का पहले करता है. 5.5 लाख पहुंच गया 2000 रुपए की नौकरी से. अशोक नगर में मेरा किसी के यहाँ काम करता था, उसको महीने के 2000 मिलते थे अंकल, और वो ईमानदार बच्चा है. वो नेहरू प्लेस गया, वहाँ गधे 3 महीने नौकरी करी, गधे को पैसे लेके भगा दिया वहाँ से. वो सीधा बच्चा है. आया मेरे पास, कहता सर मैं आपका स्टूडेंट. हमें याद नहीं आया कौन सा स्टूडेंट. बहुत याद कराया. साहब मेरे को मारते थे, बोलते थे गंजू आ गया. याद कराया, हाँ याद आ गया. चलो लैब देखो मेरा. और आज देखते देखते
वो टॉप पे पहुंच चुका है और आज भी वो उसी डाउन टू अर्थ के साथ रहता है। तो सीखने के लिए बहुत झुकना पड़ता है, बहुत झुकना पड़ता है, और सब कुछ उसमें नजर आता है। एक सीखने का रास्ता सक्सेना के पास है, बिलाल अहमद के पास है और सुजीत श्रीवास्तव के पास है। ये सब मेरे राइट हैं। हम सेंटर में 10 दिन के लिए नहीं है, एक फोन कर दें कि जॉब छोड़ के यहाँ के बैठ जाए। तो डेटा हाइडिंग का मतलब ये होता हमें अपने आप से कुछ छिपाना नहीं चाहिए और दूसरे से उतना ही बात करो जितना दुनिया तुमसे चाहती है। क्या बोलो? इन कैप्सुलेशन, हाइडिंग ऑफ मेथोलॉजीज। हम जर्नी में रहेंगे, हम एक शब्द नहीं बोलेंगे, अपना पढ़ते रहेंगे। तुम मुझे अगर टोकोगे तो मैं तुमको जवाब दूंगा, राइट? मैं तुमको मैं नहीं टोकूंगा कि मैं उस वक्त अपने बारे में सोच रहा हूं मैं हूं कौन। मैं क्लास के बाद किसी को नहीं टोकता हूं सेंटर में कि मैं वॉक जो करता हूं ना बेटे, और जब पढ़ता रहता हूं शुरू में, मैं हर वक्त अपने बारे में सोचता हूं। मुझे इस वक्त किसी और का नहीं सोचना, मुझे अपने बारे में सोचना। हमारा राइट अंकल? हर को राइट है अपने बारे में सोचना, और जो अपने बारे में सोचता है वही लाइफ में राइज करता है। क्यों? वही किसी दूसरे को दे सकता है। जो अपने बारे में नहीं सोचेगा वो दूसरे को क्या देगा? वो नंगा से बदतर है, उसके पास नॉलेज नहीं। पहले प्रिजर्व करो, बाद में क्या करो? डिस्ट्रीब्यूट करो। तो डेटा हाइडिंग से बेटे प्रिजर्वनेस होती है, राइट? और इनकैप्सुलेशन से बोलो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। पर अपने आप से हम डेटा हाइडिंग नहीं करते। अपने आप से पूछते हैं हमें क्या आता है और क्या नहीं आता, उसकी हम सूची बनाते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। फंडा मस्त हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलो। ये पूरा करा दिया मैंने। हमने एब्स्ट्रैक्शन को क्या बोला? कलेक्टेड वर्ड बोला और सिलेक्टिव बोला। क्या बोला? बोलो सिलेक्टिव बोला। हमारी कल इंटरव्यू है और रात की है। हमारे पास अंकल मोस्टली कॉल इस बात का आता है कि सर कल मेरी मॉर्निंग में इंटरव्यू, रात में क्या पढ़े, चाहे खुल्लर हो चाहे झंकार हो। हम एक रात में तुम्हारे को बदल सकते हैं। सर रात सुबह क्या पढ़ के जाओ? हम यही बोलते हैं, सिंपल है, हर को यही बोलते हैं, तुम जितना पढ़ रखे उसी को तुम रिवाइज करो, नया कुछ मत पढ़ो। एक रात में तुम नए रंग नहीं ला सकते हो, राइट? वो रंग गीला हो जाएगा सुबह। जो पढ़ रखे हो उसी को सवारो। सर नहीं, WCF सिक्योरिटी, सर एक्सेप्शंस, WCF मल्टीपल होस्टिंग, नहीं बोल देना नहीं आता है। एक प्रोग्राम बना दो, नहीं। मनीष शर्मा आया था रूम में, आपके सामने की बात है, मनीष कुमार शर्मा। जो टॉपिक करते तुम वही पढ़ेगा, नया कुछ मत करो। जो है उसी को टाइट करो, जो बिक रहा है उस वाले को छोड़ दो, राइट? और उसका कुछ नहीं हो सकता है। उस रात में वही पढ़ो जो तुमको आता है, कुछ नया नहीं। सॉर्टिंग, यार सॉर्टिंग कर लूं क्या? नहीं आता, नहीं करो, अब छोड़ दो। पूछ देगा यार छोड़ दो, सर आप बोल रहे हो तो छोड़ देता हूं, जाओ। जब तुमसे वो खुश होगा ना गुरु, इतनी वो शिकायत नहीं करेगा, राइट? वो तुमको ज्यादा वो पोक नहीं करेगा, वो तुम्हारी बातों में आ जाएगा, राइट? मतलब तुम हल्का नॉलेज जाओगे ना गधे, तो तुमको पकड़ लेगा मिनट के अंदर। कम बैक टू पॉइंट। सो देयर आर सेवरल रीजन आई वांट गो विद स्टैटिक वेरिएबल। एक क्वेश्चन पूरा हो गया, राइट? पूरा हो गया। बस थोड़ा बातों से बाहर मत निकलना, तब मेरे हर पॉइंट पे ना सुर ताल मेरे साथ रखो। तो एक क्लास में डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल हो सकते हैं, और अगर एक क्लास में अगर वेरिएबल किसी टाइप का नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या है? वो इंस्टेंस है और मेंबर। अब लिखना बेवकूफी अंकल 100 बार लिख चुके हैं। क्लास ABS ओपनिंग और क्लोजिंग इंट रोल नंबर लाखों बार लिख चुके हैं आपके बेंच में। अगर बेटे वो किसी प्रकार का ना है तो बाय डिफॉल्ट क्या है? वो इंस्टेंस है और मेंबर। इंस्टेंस वर्ड रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को, तो बाद में किसका है? वो ऑब्जेक्ट का।
सर जी एक क्लास में 13 वेरिएबल है, अच्छी बात है, और उस क्लास के 4 ऑब्जेक्ट हैं, तो हर ऑब्जेक्ट में 13 वेरिएबल गए, बिल्कुल गए। तो मेरी बातों में बेटा फंसता जा रहा है। हर ऑब्जेक्ट में 13 वेरिएबल गए और 13 चौका 52, 4 डब्बा, हर में 13। बस एक प्रॉब्लम है, क्या हो गया? तो ये वेरिएबल हर में क्यों गए? When any information can be common to all the objects, when you put on the notice board on the college top area, इसको नोटिस एरिया और नोटिस बोर्ड इसको वहां लगा दो। हम दीपावली में, हमें अपनी बिहार याद है, अब तो भूल भी गया, पुरानी बातें, एक लैंप होता था, उसे बल्ब लगाते थे, am I right? और लाल रंग के कवर करते थे और उसको ऊपर लगा। देखा जो कह रहा है जानते हो शायद, सारे फॉरेन से, जापान से है ना लोग, हाँ उसको ऊपर, सबसे ऊपर लगाते थे। देखा कैसे बल्ब लगा, सब हिस्ट्री बन चुकी है अब। तो वो ग्लोबली जलता था वो, और दूर से दिखता था। एक स्कूप ऐसा रखो, एक स्कूप ऐसा रखो जो हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या पब्लिकली हो। आज डेटा हाइडिंग बिल्ड करने की बात कर रहा हूं बदतमीज। एक ऐसा स्कोप बनाओ हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन। एक स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट का लाइट, और जितनी वहां से गाड़ियां जा रही हैं हर को वो लाइट मिल रही है। और उस कार की गधे की जो लाइट है उसके लिए है, हमारा राइट। उस गधे की जो कार है उसकी जो लाइट है उसके लिए, इसकी जो लाइट है वो सबके लिए। इसका स्कोप बेटे क्या होगा बोलो? ग्लोबली स्कोप होगा। तो स्टैटिक बनाने से एक ग्लोबल स्कोप बनता है, और वो ग्लोबल स्कोप बोलो कौन है? स्टैक है। बोलो कौन है? स्टैक। और ऑब्जेक्ट कहाँ होते हैं? बोलो हीप में होते हैं। कहाँ होते हैं? बोलो दिस अंकल की कार, सर की कार, संदीप करण का साइकिल, ये 3 डिफरेंट लोकेशन में, और ऊपर से एक लाइट जल रही, तीनों को बोलो क्या मिल रहा है? बोलो रोशनी मिल रही। वो लोकेशन क्या? बोलो स्टैक। फिक्स लाइट मिल रही है, फिक्स लाइट, फिक्स लाइट, लुमिनस इंटेंसिटी पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में। एक फिक्स लाइट मिल रही है, सेम ब्राइटनेस मिल रहा है, तीनों को सेम फोकस मिल रहा है। क्यों? तुम भी बोलते हो 1000 वाट का बल्ब लगा है, अंकल भी बोलते हैं 1000 वाट का बल्ब लगा है, और श्रीवास्तव जी बोलते हैं 1000 वाट का बल्ब लगा है। तो when the information is common to all the objects, please you go for static। उसको स्टाइल्स के लोकेशन से निकालो और कहाँ डाल दो? एक तुम्हारे 4 रूम को मिलाकर बेटे एक लाइट की, इस ट्यूब का जलना, वो जो एरिया तुम देख रही हो स्टैक है, और जहाँ हम बैठे हैं बोलो कौन है? सारे बंदे जो बैठे अपने चेयर को लेकर, हर क्या बोलो? ऑब्जेक्ट है। और हर को सेम लाइट तो नहीं मिल रही है, पर वहां से सेम वोल्टेज निकल रहा है, और लाइट का रेंज डिपेंड कर रहा है आपकी डिस्टेंस। तो कोई इंफॉर्मेशन अगर हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन, तो क्या बना दो? बोलो स्टैटिक। स्टैटिक बनाने से ये होगा बेटे, वो वेरिएबल अब ऑब्जेक्ट में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? स्टैक के लोकेशन। नहीं आता समझ में? तो ये देख लो, there is a class called ABS and there is a A1, A2। बेटे 3 ऑब्जेक्ट, बट मत भूलो ये 3 ऑब्जेक्ट एक क्लास को बिलोंग करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लाइट जलाऊंगा, यहाँ पे लाइट, हर तीनों को रोशनी मिलेगी। अरे बोले, बट बेटा अगर मैं यहाँ जलाऊंगा लाइट, इसको रोशनी नहीं मिलेगी। इस वाले एरिया को बोलो क्या बोलोगे? तो जो मेरे मेंबर वेरिएबल थे
उसको भी क्या बना दिया बोलो, स्टैटिक बोला। जैसे स्टैटिक लिखा, अब ये वेरिएबल इस वाले लोकेशन में नहीं जाएगा, ये किस जगह बोलो, इस वाले लोकेशन में। और स्टैक में जो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए वो ग्लोबल है, वो किसके लिए, तीनों के लिए। क्यों कि तीनों जो ऑब्जेक्ट है किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, बोलो एवीएस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पेड होते हैं बाय डिफॉल्ट पेड हाँ ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे सर स्टैक में कैसे चला जाएगा? सर ये जो आपके जो स्टैटिक होते हैं ना, वो क्लास की मेमोरी में जाते हैं, और क्लास की जो मेमोरी है वो एवीएस जो है, एवीएस वो स्टैक है। और ऑब्जेक्ट जो है उसका होता है वो, जैसे आप यहाँ बैठे हुए हो और आपका पतंग वहां उड़ रहा है, आप जहाँ बैठे हो उसको लेकर, ठीक है, ये स्टैक है। पतंग वहां उड़ रहा है, वो जो एरिया वो क्या बोलो, आप जहाँ से पतंग उड़ा रहे हो वो क्या बोलो, स्टैक है। क्यों, आप यहाँ से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और रिजल्ट बोलो कहाँ जा रहा है, बोलो हीप में जा रहा है। आप ऐसे ऐसे करते हो वो ऐसे नहीं हिल जाता है, आप ऐसे उसको बंद करना शुरू करते हो वो अपनी नजदीक आना शुरू हो जाता है। लास्ट में समेटते हो कर दे रहे, आप परफॉर्म कर, एक्शन कहाँ परफॉर्म कर रहे हो और रिजल्ट में कहाँ आ रहा है। इसलिए आप चाहते हो कि ये काम हम अपने मेमोरी में रखें। ऐसा है बॉस, ये कुदाल लो, ये खेत लो, ये धान लो, या काम शुरू करो। जब काम खत्म हो जाए तो कुदाल लो, अपने वापस करो, मेरे लोकेशन ला के रख दो, कहाँ रख दो, मेरे लोकेशन। क्यों, उसको तो दोबारा फिर यूज करेंगे। और धान कहाँ गया, उस खेत में गया, वो खेत क्या बोलो, हीप। सर आंसर आया सर में, तो याद रखना सर, स्टैक में ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और हीप में क्या जाते हैं, उसके रिजल्टेंट जाते हैं। जैसे सब बोलो, आपने कहा प्रेम एक काम कर, बैंक जाओ और ये मैं साइन करके देता हूँ, एक अकाउंट पे साइन करता हूँ, जब वहां से निकाल के 200 रुपये। वो जब गया पता नहीं साला क्या हुआ, भगवान जाने, लास्ट में आया आपको 200 रुपये दे दिया। बताओ सर कहाँ रखोगे, अपने पॉकेट में रखोगे, बेटा ये क्या बोलो, हीप। वो कैसे गया, क्या करा हमें नहीं पता, वो क्या बोलो, स्टैक। तो स्टैक में क्या होते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और रिजल्टेंट कहाँ आता है, बोलो हीप। और कुछ और बताओ सर, ये हार्ड डिस्क, ये पेन ड्राइव है, बोलो इसमें स्टोरेज मीडियम है, बिल्कुल है। हार्ड डिस्क से एक फाइल लेनी है और पेन ड्राइव में काम कॉपी करना है, सर नहीं हो पाएगा जब आप सिस्टम को ऑन नहीं करोगे। सिस्टम पूरा प्रॉपर बूट होगा, राइट माउस क्लिक करो सेंड टू पे, तो डार्लिंग सेंड टू पे तुमने क्लिक करा, सीपीयू हलचल में आए, सीपीयू क्लॉक हलचल में आए, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुए। ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे कहाँ है, बोलो स्टैक में होता है। और सुनेगा साले, सुन, एक आतंकवादी कई साल बैठ के एक प्रोग्राम बना रहा है, एक कमीना मीटिंग कर रहा है, गंदा साला मीटिंग कर रहा है, उन लोगों का पट्टा। वो जो मीटिंग कर रहा है वो एरिया बोलो क्या है, स्टैक है, और उसका डिस्कस करवाएगा साला बोलो शाम में आएगा, नहीं आ सकती। ब्लास्ट, तो ब्लास्ट कहाँ हुआ, हीप में हुआ, और उसके बोलो मैनेजमेंट, बोलो कहाँ मैनेजमेंट। और सुनेगा, और सुन ले, हम बैठ के कुछ सोच रहे हैं, ये करना है यार, वहां जाना है, कैसे जाऊं बिहार, क्या करना है, टिकट कंफर्म नहीं है, 50 दिमाग में काम चल रहा है। ये सारे ऑपरेशन बोलो कहाँ हो रहे हैं, और अब तक कुछ नहीं, रिजल्ट अब तक हो गया। अब तो ना भूलेगा स्टैक में क्या होता है, हीप में है। हीप बेटा है स्टोरेज मीडियम, याद रखें, और स्टैक भी बेटा स्टोरेज मीडियम है। और सुन ले, स्टैक को मत कहना स्टोरेज मीडियम, पहले स्टैक ऐसा एरिया है जहां तुम्हारा काम होता है। ये आपने अंकल ने बना दी पूरी केबिन, 16 केबिन बना दी, 16 केबिन। साले कल से 16 एम्प्लॉइज काम करेंगे उस केबिन में, ठीक है, और 9 से 6, और मंथ में बोलो क्या आएगा, कुछ न कुछ इनकम आएगा, चाहे लॉस में आए चाहे प्रॉफिट में आए, कुछ ना कुछ तो आएगा।
ये बोलो क्या है? बट जब काम नहीं होगा गधे, तो ढक्कन हीप में क्या आएगा? मतलब जब फंक्शन कॉल नहीं होगा, रिजल्ट हीप में नहीं आएगा। इसलिए बेटा फंक्शन कहां होते हैं? स्टैक में। जब फंक्शन वाले कॉल करते हैं तो स्टैक वर्क करता है। सुन रही है? दिमाग लगा। अगर बेटा किसी तरह से बदतमीजी कर ली, प्रकाश पॉल वीरू कलम में गया, बहस कर लिया, 2003 का बंदा पास आउट है, प्रकाश पॉल आते थे, अब नहीं आते हैं, तो उसकी फ्रेंड आती है पूजा, जो पूजा बैठती है यहाँ पे, उससे पूछता है फंक्शन कहाँ होते हैं, तो वो बंदा 2003 का पास आउट था। हाँ, उसको थोड़ा ईगो प्रॉब्लम था अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने थोड़ा बोल दिया। आपको क्या लगता है? किसको लगा कि जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है वो 3 का पास आउट नहीं, उसके चेहरे से लगा, उसके बाल के रंग से लगा और देख के लगा, वो वास्तव में गधा 4 का पास आउट था। तो कहा आप ठीक से बात करो। सर आपको मैंने ऐसा ही बोल दिया, आप बताओ ना कहाँ होता है? मुझे नहीं पता कहाँ होता है। उसने बोल दिया हीप में होता है। इससे उसका गला पकड़ लिया, लॉजिकली गला पकड़ लिया, आवाज बंद करा दिया, लो बंद हो गया आवाज। कैसे पकड़ा? अगर साले फंक्शन अगर हीप में होगा तो अगर 5 ऑब्जेक्ट बनेंगे तो 5 ही बनेगी, और 5 लोकेशन बनेगी। सुन रहे अंकल जी? 5 ऑब्जेक्ट बने तो 5 लोकेशन बनी, और फंक्शन कहाँ गए? 5। वाह 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 वाह। 5 ऑब्जेक्ट बने और फंक्शन कौन था? शो। फंक्शन बोलो कौन था यहाँ पे? शो था। एक शो फंक्शन है जो देता है फेबोली की सीरीज का आउटपुट, ये कुछ ही देता है हमारे को साले। अगर ये फंक्शन अगर ऑब्जेक्ट में जाएगा तो बोलना इस फंक्शन की कितनी कॉपी बनी? 3 कॉपी बनी, 5 कॉपी बनी। और इस क्लास में एक इंट रोल नंबर वेरिएबल है, और आपको बता चुके इंट रोल नंबर क्या इंस्टेंस वेरिएबल है। ये कहाँ जाएगा बेटे? ऑब्जेक्ट में। मतलब पर वेरिएबल को काम करने के लिए बोलो कौन बना? एक बोलो फंक्शन बना। वाह वाह वाह। ये अच्छी बात है कि पर वेरिएबल कहाँ जाएगा बोलो? कॉलम आप अपने टाइम पर ले लो यार। पिनार नंबर यहाँ आया, पिनार नंबर यहाँ आया, पिनार नंबर यहाँ आया, पिनार नंबर यहाँ आया। अब सदा जी माल खाना ठीक से याद आएगा, तुमको याद आएगा तेरे को, डरना मत। पिनार नंबर हर ऑब्जेक्ट में गया, मसाले बदलाव जो तेरे को पिनार नंबर मिला है कहाँ से लिया? तुमने किसी काउंटर से लिया? अरे बोल यार, सब तू बता कहाँ से लिया? तूने कहाँ से लिया? साढ़े 16,000 पिनार नंबर बिके हैं आज। सब पता सारे कितने काउंटर थे? 16,000 काउंटर थे। ऐसे कर रहे हैं। हमने इनका समय गवा के सीखा है, और चाहते समय से पहले सीख। ये प्री मैच्योर है, हमने समय लगाया है, गवाया नहीं है, लगाया है। जीवन सर के साथ और शुक्ला सर के साथ, राजीव यादव के साथ, ये 3 गुरु हैं लाइफ में। कभी फंस जाऊं तो मुझे बैठा के सिखा देंगे। राजीव यादव सीडैक का टेक्निकल डायरेक्टर, और ये जीवन असीजा सीडैक का टॉप टेक्निकल डायरेक्टर। 3 के मैं जिंदगी साथ गुजारा, और एक रात मैं सर की घर की सफाई कराऊं, वो समझ कर। और एक याद है, उसी रास्ते मेरा बच्चा था सुजीत श्रीवास्तव, एक इजी कॉलेज का। उस दिन सारा प्रेम सुबह नहीं आया, आप यकीन नहीं करोगे अंकल, झाड़ू से पूरा सेंटर साफ कर रहा था, और मैं रो रहा था, यार देखो कैसा बच्चा है। अभी याद आता है, सेंटर आता है, संडे संडे आता है, पूरी झाड़ू से सेंटर की सफाई कर रहा है। इस आप आओगे और क्लास कैसे? शॉप तो सीधा सुजीत श्रीवास्तव 2008 का एक इजी का पास आउट, वो सेक्शन एक ही बैच में थे, 2008 का पास आउट। तो हमने अपने कंसर्न बनाया, कंसर्न सर सेंटर की सफाई। एक और लड़का था, गधे का नाम भूल रहे हैं, वो भी कोई श्रीवास्तव था, वो पानी भर रहा।
और उसने साला इसको काफ़ी फिक्र हो गया था प्रेम को, तो कहता फ़ोन नहीं किया, आया 8:15 बजे, बच्चे आ गए थे 7:45 बजे, ये 2 बच्चे थे। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, अरे क्लास का फंक्शन अगर ऑब्जेक्ट में जाता अंकल तो 16 ऑब्जेक्ट बनते, तो 16 फंक्शन कहाँ जाते बोलो? डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। बट एक वेरिएबल, ये जवाब था अब तुम्हारे उस बंदे का, प्रकाश पॉल का, मेरे फेसबुक में है वो। सर फंक्शन हीप में नहीं जाता, फंक्शन कहाँ आता है बोलो? मत का स्टैक फंक्शन वहां आता है जहां बोलो कौन है? ये 3 बिलोंगिंग किसकी है बोलो? और क्लास कहाँ है? ऑब्जेक्ट कहाँ है बोलो? स्टैक में क्या है? इस हीप का बोलो क्या है? रेफरेंस। बोलो यार, जो मेरा काम करने गया है ना बेटे, उसके बाद मेरा रेफरेंस है, हमारा ही लॉट के साथ काम मेरे को ही देगा वो। बोले यार, स्टैक के पास क्या? स्टैक के पास हीप का बोलो क्या है? रेफरेंस है। स्टैक के पास एक पॉइंटर है जो हीप को पॉइंट करता है। काम खत्म, प्रेम देखते सवाल किसको देगा? अरे कहा जिसने बुलाया उसी को देगा ना, किसको देगा? तो ऑब्जेक्ट ने बुलाया फंक्शन को, अरे बोले यार, बट ये मत बुलाओ सोचो कि अगर 5 ऑब्जेक्ट अगर एक फंक्शन कॉल करेगा तो सारे 5 फंक्शन की कॉपी बनेगी। पता है इससे क्या होता है? पता है क्या होता है? अगर मान लो एक फंक्शन की साइज 1 KB होती, समझ में आया, तो हर ऑब्जेक्ट की साइज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स प्लस 1 KB। अरे बोल यार, कैसा रन कर? अब तुम्हें करते आप मत निकलना, आप बस चिंतन करो।